students. Once again, myself Dr. Amit here, and let me take you all into the beautiful world of biology. Are you all ready? Come on. हाँ जी ना जी, सब रेडी हो ना? कैसे है आप सब? सेशंस अटेंड कर रहे हो ना रेगुलरली? आई होप यू आर एंजॉइंग and I hope I'm trying my best to give you the best of knowledge whatever I have which is needed at your level. Strictly I am abiding all the guidelines of whichever given in your textbook and I'm just explaining those things, those core concepts जो कि आपको help करेगा, right? अच्छा, अभी हम सेशन नंबर 4 में है सर्कुलेटरी सिस्टम में, right? So far we have studied about transport, what is transport, what are the different fluids, then we studied about plasma, red blood cells, कैसे हम दोनों को categorize करते हैं. Plasma is 55% present in blood while cellular elements like RBCs, WBCs and platelets are remaining 45%. हमने divisions देखा, diagrams देखे, फिर हमने रेड ब्लड सेल्स के रिलेटेड सब कुछ जाना कि क्या शेप है, कैसे वर्क करते हैं, हीमोग्लोबिन कैसे कैरी करता है ऑक्सीजन को, राइट? याद आ रहा है ना वो विजुअल? जब भी याद आए तो बस याद रखना है कि हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी, राइट? सो आपको ये सब याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, राइट? और ओवर द टाइम रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है आप ये समझोगे, राइट? रिवीजन, RE, it is for repeated vision. देखो रिवीजन क्या होता है? RE stands for repeated, means the things which we do again and again, right? And vision is what we see, what we hear, what we learn. Here we are integrating all the systems, hearing, listening and looking for different things. Visuals, eye भी use है, visual system भी use है. So it is that हम पढ़ रहे हैं ना book, so vision we are utilizing with the help of eyes, then we are retaining those informations. Now in sessions you listen, so our brain works that way. और जब हम repeated कोई चीज पढ़ते हैं ना, बार बार, it's add-ons to our long-term memory. ये मैंने I think आपके बैच में जब रिविजन लेक्चर्स लिए थे, फेस टू फेस लेक्चर्स इन पुणे, मैंने आपको कहा था कि कैसे पढ़ना है, what are the techniques to score the maximum. जब मैं आपकी एज में था तब मैंने कैसे पढ़ा, या फिर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. इवन 11th-12th when I cracked exams and I passed and got entry into government medical college for MBBS, then I completed my MBBS. So throughout I always I reminded myself whenever I was studying, preparing for my exams or whatever, कोई भी टेस्ट हो या फिर फाइनल एग्जाम्स हो, रिवीजन इज द की. रिमेंबर, इट इज द की. सो हमें पढ़ना है. सो आज मैंने पढ़ा है तो अब सेकंड डे पढ़ना है, फिर एट द एंड ऑफ वीकेंड में पढ़ना है. मंथ में आप 2 बार पढ़ लो तो एग्जाम के पहले कम टाइम लगेगा, और जब रिपीटेड पढ़ते हो तो कम टाइम लगता है. आज अगर 1 घंटा लगा है तो देन हाफ एन आवर, देन 20 मिनट्स, 5 मिनट्स बिफोर एग्जाम यू आर ऑल रेडी. जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, राइट? अब आप बोलोगे सर नोट्स, या नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सी वी आर इनटू 4th लेक्चर, और मैंने आपको बीच में कहा था, but now I specially want to emphasize on this point that preparing notes is the key for your success in your exams, final 10th board exams, right? आपके ICSE board के जो exams होंगे, right? So if you want to score the maximum of marks and grades, you need to prepare your notes. Notes are very important, don't forget. See, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं lectures में keywords दे रहा हूँ आपको, then I give you few tricks for how to split words, how to find the hidden meanings. हम कुछ funny way में सीखते हैं, right? बेसिक वर्ड्स को हम स्प्लिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपको कल, ल्यूकोपेनिया एक कंडीशन है, राइट? ल्यूकोपेनिया इज वन ऑफ द कंडीशन. सो ये क्या होता है अभी बताओ मुझे कोई. सो ल्यूको इज फॉर व्हाइट एंड पेनिया इज फॉर, इट इज समथिंग लेस. अगर आप अपने नोट्स में, जैसे मैंने आपको सिखाया है, आप एक सर्कल बना लो, पेनिया इज लेस, साइड में बनाना है. सपोज दिस इज योर नोटबुक, right? This is your notebook.
You are writing definitions here, you are writing the keywords I am teaching, classification, right? अभी क्या है, यहाँ पे एक पैसेज होता है थोड़ा सा नोटबुक के दोनों साइड में, या फिर नहीं भी है, तो अगर आपने ल्यूकोपेनिया लिखा और आप अटेंड कर रहे हो मेरा ये लाइव लेक्चर, तो आप क्या करोगे? सर ने कहा इट इज डिक्रीज नंबर ऑफ WBC, और हमने कैसे याद रखा है इसे? मीनिंग के साथ। ल्यूको इज वाइट, तो आप आइदर वहीं पे सर्कल कर लो ल्यूको वाइट, आइदर यूज डिफरेंट पेन्स इफ यू नीड इट, सो दैट आपका विजुअल मेमोरी अच्छा रहेगा। रेड पेन और एनी अदर पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, सो दैट ये आपके विजुअल मेमोरी में जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको क्लिक होगा, अरे ल्यूको इज वाइट, पेनिया यानी लेस, जहां पे भी पेनिया लगेगा, फिर वो ल्यूकोपेनिया हो या इरिथ्रोपेनिया हो, यू आर ऑलवेज रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट? आपने नोट्स में तो फाइनल कर लिया है, ये आपके नोट्स हैं। अगर एक लेक्चर में 2 पेजेस के भी नोट्स बन गए आपको, और इवन लेस, बट आप कीवर्ड्स लिख लो एंड देन यू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक। जब मेरा सेशन खत्म हो जाए आप पढ़ लो, हाँ सर ने ये पढ़ाया था, हमने ये विजुअल देखा था, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फिर आपको डाउट आ रहा है कि सर ये नहीं, ये मुझे नहीं समझा, ये क्या है, ये क्यों है, फिर आप स्नेहल सर को कन्वे करो थ्रू टेलीग्राम ग्रुप्स, और स्नेहल सर को पर्सनल मैसेज करके स्नेहल सर मुझे कन्वे करेंगे, मैं उनको फॉरवर्ड करूंगा मैसेज, वो आप तक पहुंच जाएगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था तो मैंने आंसर किया है, सो दैट्स द वे, राइट? सो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप ऐड ऑन करो और देन योर नोट्स आर रेडी। देन इन दिस नोट्स फॉर 1-2 पेजेस आपने यहाँ पे क्लासरूम में मेरे साथ लिखे, देन यू विल ऐड ऑन, ये 2nd-3rd पेज है आपके नोटबुक का, यू आर ऑन द 2nd पेज। देन आप टेक्स्ट बुक में जाओगे, हाँ अभी मुझे ये डेफिनेशन फिर से लिखना है, ये क्वेश्चन में पूछते, आई विल राइट डाउन प्रॉपरली दिस, देन आई विल राइट डाउन, हाँ सर ने ये बोला था, हमने सिर्फ कीवर्ड लिखा है, मैं एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखूंगा इसे मेरे नोटबुक में, सो दैट जब मैं रिवाइज करूं, देन जब टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको टेंशन नहीं आएगा एग्जाम के पहले, यार कितना कॉम्प्रेस्ड है और ये कैसे दिया है और कैसे याद रखूं मैं, राइट? आपको याद रहेगा, अरे मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हैं, देन आई विल गो थ्रू द डायग्राम्स इन टेक्स्ट बुक, जो हम अलग अलग विजुअल्स के थ्रू देख ही रहे हैं इन सेशंस में, देन वी विल राइट डाउन हियर फ्यू पॉइंट्स विच आर देयर इन टेक्स्ट बुक एंड विच विल बी आस्क्ड एज अ MCQ और क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, प्रिपेयर योर आंसर, राइट डाउन। आप लिखोगे तो आपके विजुअल मेमोरी में, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में और वो अच्छे से बैठ जाएगा आपके ब्रेन के अंदर। देन बिफोर फाइनल एग्जाम आप सिर्फ टेक्स्ट बुक रखे हो, आप टेंशन नहीं है आपके पास, आपके ऑल नोट्स आर रेडी एंड यू आर हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट बायोलॉजी, डोंट वरी, कोई टेंशन ही नहीं है। हमने नोट्स बनाए थे, हम देखेंगे, हमें पता है ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका मीनिंग ये है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कुछ भी पूछे घुमा के, ये ऑप्शन उन्होंने अलग दे दिया BC, जो कि गाइड्स में भी नहीं है, बट मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मुझे क्या डरना है, मैं रूल आउट करूंगा, हाँ ये नहीं है, C नहीं है या D नहीं है, हाँ A लग रहा है, हाँ ये मीनिंग सही है, मुझे याद है मेरे नोट्स में मैंने यहाँ ये लिखा था, या फिर टेक्स्ट बुक से मैंने ये लिखा था, या फिर मैंने टेक्स्ट बुक में ये फोटोग्राफ देखा था, या फिर मैंने ये विजुअल सर से सीखा था, राइट? सो प्लीज गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, दिस इज जस्ट फॉर योर, क्या आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं मैं। टॉपर्स, जो टॉपर्स होते हैं या जो अच्छे स्कोर्स करते हैं ना, वो हमेशा नोट्स प्रिपेयर करते हैं उनके, फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और द हिस्ट्री और व्हाट एवर सब्जेक्ट। बायोलॉजी तो ऐसा सब्जेक्ट है, इट इज वेरी वास्ट। सी हम अभी कहाँ पे है, हार्डली 3rd-4th पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, बिकॉज आई एम ट्राइंग, बिकॉज दिस आर न्यू थिंग्स। आपने ये पढ़ा नहीं है 8th में सिर्फ आपने हार्ट पढ़ा है, वेन्स, आर्टरी पढ़ा है, डिफरेंस पढ़ा है, आपको पता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट दैट विल टेक लेस टाइम। बट अभी के लिए जो भी है ये सब नया है, दिस टर्म्स लाइक डायापेडेसिस, देन वी विल कम अक्रॉस फैगोसाइटोसिस, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी न्यू टू यू, और आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, यार ये वर्ड कहाँ पे था, इतना बड़ा सिलेबस है, तो अब याद करोगे डायापेडेसिस समथिंग रिलेटेड टू WBC। हाँ, डाया इज समथिंग गोइंग अक्रॉस डायमीटर लाइक वन प्लेस टू अनदर, पेडेसिस इज लाइक स्यूडोपोडिया अमीबा जैसा। तो ये कौन सा है, ये एक WBC है जो आर्टरीज के थ्रू ऐसे निकल के आता है और फाइट करता है ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। सिर्फ आप लिखोगे द डेफिनेशन ऑफ डायापेडेसिस, क्योंकि आप क्लियर हो ना, आपने ये सीख लिया था तो आपके लिए आसान है। तो आपको पता है कि पैसेज ऑफ WBC, पैसेज ऑफ क्या, पैसेज ऑफ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हाँ लिसन फोकस, पैसेज ऑफ WBC, ये WBC है, थ्रू द वॉल्स ऑफ क्या, इंटैक्ट वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज यानी आर्टरीज के ब्रांचेस,
ये टिश्यू है, यहाँ पे बैक्टीरिया, इज कॉल्ड एज डायापेडेसिस। आसान है क्योंकि आपने समझा है, विजुअल देखा है, आपके ब्रेन में क्लियर है। अगर भूल भी गए एग्जाम के पहले रिवाइज करना कि नहीं, तो भी आप याद करोगे क्योंकि हमने सेशन को फोकस से सुना था, हमने एंजॉय किया था बायोलॉजी को, और फिर हमने समझ के उसे पढ़ा था, एक दो बार रिवीजन किया था। देन व्हाट्स द बिग डील इन स्कोरिंग गुड मार्क्स? क्या बड़ी बात है, आसानी से हम सब अच्छे मार्क्स लेंगे, राइट? सो प्लीज, एंड देन रिमेंबर, नोट्स आर लाइक योर फ्रेंड्स, सो नोट्स को बनाना है, हैप्पी रहना है, ओके? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने स्टार्टिंग के सेशन में आपको बताया है, सो दिस होल्ड्स ट्रू एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्रीवियस एज वेल एज नेक्स्ट सेशंस जो भी मैं आपके लूंगा, या फिर आप जहां पे भी जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ो, नोट्स बनाना है, नोट्स नोट्स नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, राइट? वीडियो आप नहीं देखोगे, जब वीडियो एग्जाम के पहले आप इतने सारे वीडियोस देखोगे 8-9 पार्ट्स का, सर्कुलेटरी सिस्टम, अदर सिस्टम्स, नहीं, यू हैव दैट मच ऑफ टाइम। अगर 4x 3x स्पीड में भी देखोगे तो वो आपको समझेगा नहीं, इट इज ऑफ नो यूज। सो बेटर अभी समझो और देख लो। हाँ, अगर आपको कोई विजुअल देखना है तो आप उस वीडियो में जाओ, आपको पता है फॉरवर्ड करके यहाँ पे डायापेडिसिस का एक विजुअल दिखाया था सर ने, वो देख लो फिर से। You have all the links available, previous links of all the subjects, even biology, whatever I have sessions I have taken, right? So it's clear. Right now, अभी हम फोकस करेंगे आज के टॉपिक पे, right? So let's move on. So second types of cells are white blood cells, right? हमने already start कर दिया है white blood cells को। कल हमने क्या क्या पढ़ा, उनका नॉर्मल काउंट कितना होता है, 4000 to 8000, याद रखना है 1000, और मिलियन में आरबीसीज होते हैं, हमेशा याद रखना है क्योंकि उनका कम रोल है ना डिफेंस में, बाकी वक्त नहीं, बट आरबीसी नीड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज द की मेटाबॉलिक दैट नीडेड फॉर अवर ऑल फंक्शंस ऑफ सेल्स। ऑक्सीजन के बिना हम जी सकते हैं, सांस लिए बिना नहीं। सो रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होंगे, इन मिलियंस, 5 मिलियंस इन males, 4.5 million in females per cubic mm, and in children's में 6 to 7 million per cubic mm। और different conditions हमने देखे, कौन से conditions में बढ़ते हैं नहीं बढ़ते। Then we moved on to white blood cells। yesterday we see origin and life, same as RBCs, bone marrow में बनते हैं, right? Today we'll see about different types of white blood cells, कौन से हैं और उनका क्या रोल है, very important, ठीक है ना? एग्जाम में पूछेंगे आपको। And there are beautiful diagrams given in your textbook. Once again I am just trying to explain you here. You can go through the diagrams later when you will be done with this lecture, and then you will be able to easily understand the things given. बड़ा सा चार्ट है, देख के डरना नहीं है, ठीक है ना? हम बड़ा आसान करने वाले हैं इसको। So first type of white blood cells, ये first है, इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल। नाम याद रखना है, न्यूट्रोफिल। ये कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 62% ऑफ अवर होल व्हाइट ब्लड सेल्स। जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं ना व्हाइट ब्लड सेल्स, उनके टोटल पॉपुलेशन के 62% यानी मैक्सिमम आर न्यूट्रोफिल। तो इनका रोल भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हम देखेंगे कि ये कैसे फाइट करते हैं अगेंस्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आप देख रहे हो इसमें एक ये जो पिंकिश है ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस which has different lobes, almost 3 to 4 lobes दिख रहे हैं आपको, total 4। See, ये 4 different cells नहीं है, या फिर ये different nucleus नहीं है, only single nucleus which is lobed, which bifurcated into different lobes। अगर ये single nucleus होता है normal cell में, right? तो इसमें न्यूट्रोफिल में क्या होगा? ये न्यूट्रोफिल है तो इसमें देखो ये single nucleus के क्या हो गया? ऐसे 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 4 लोब्स बन गए, राइट? ये उसका स्ट्रक्चर है, हर एक सेल में अलग अलग होता है। इसके अंदर जो भी मटेरियल है न्यूक्लियस में जो होता है वो तो हमें पता है, बट हमें बस याद रखना है कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है, हर एक के अलग अलग है, राइट? इसमें जो होता है न्यूक्लियस वो 4 लोब्स का होता है। कितने लोब्स? 3 to 4 लोब्स इन न्यूट्रोफिल, याद रहेगा। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है, इसके साइटोप्लाज्म कंटेन्स डिफरेंट ग्रैन्यूल्स। ये दिख रहे हैं आपको, पिंकिश ग्रैन्यूल्स। मैं ब्लैक के साथ मार्क करो, बट दे आर स्टेन्ड विथ न्यूट्रल डाइज एक्चुअली, माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना। सो दीज आर द ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड,
दिख रहा है ना आपको, ये सब तरफ ग्रैन्यूल्स है इसमें। दिस इज साइटोप्लाज्म ना, जो न्यूक्लियस के बाहर है, आसान है। तो न्यूक्लियस इज यूजुअली कंस्ट्रिक्टेड, ये जो कंस्ट्रिक्शंस होते हैं ऐसे, फिर कंस्ट्रिक्ट हुआ ऐसे, इसने एक ही न्यूक्लियस के ऐसे लोब्स बन गए हैं। सी, सो दिस इज 3 to 4 लोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड न्यूट्रोफिल। ये फर्स्ट WBC है, याद रहेगा आपको। और इसका फंक्शन क्या है? इट एंगल्फ बैक्टीरिया। एंगल्फ का मीनिंग क्या है? खा लेता है बैक्टीरिया को थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। कौन सा प्रोसेस है? फैगोसाइटोसिस। सिर्फ इतना नाम याद रखिए, अब वो क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे, हम बिल्कुल विजुअल के साथ सीखेंगे। डोंट वरी कि ये क्या है सर, अब ये क्या नया टर्म है। रिलैक्स, ओके, जस्ट टेक वन डीप ब्रेथ इन एंड आउट एंड लेट्स गो। सो हमने देखा न्यूट्रोफिल से रिलेटेड क्या है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स कौन से हैं? दे आर इओसिनोफिल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? सेकंड टाइप, इओसिनोफिल। अब ये क्या है सर? इओसिनोफिल्स आर व्हाट? टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। दे आर प्रेजेंट हाउ मच? 2 to 3% होते हैं, ये ज्यादा नहीं होते, ओनली 2 to 3%, राइट। 1 2 3, हम पहले ये 3 सीखेंगे, राइट। ये मैंने एक लाइन खींच लिया बीच में, अब ये क्यों खींचा मैं आपको बताऊंगा बाद में, या फिर अभी बता देता हूं मैं, सो दैट आपको क्लियर होगा। सो 1 2 3, these 3 types of WBCs are called as granular WBCs, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये दो, ये जो बैठे हैं ना यहाँ पे 4th and 5th, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन ग्रैन्युलर, यानी जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। अभी हमने देखा ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, मैं आपको आगे प्रोसेस में बताऊंगा, राइट। सो फर्स्ट ग्रैन्युलर 1 2 3, और नॉन ग्रैन्युलर में तो 2 ही है ये, ठीक है। सो 1 2 3 आर ग्रैन्युलर, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड थर्ड टाइप बेसोफिल। इनमें सब में अलग अलग ग्रैन्यूल्स है। इसमें आपको दिख रहे हैं कुछ, इसमें आपको डार्क रेड ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, ये डार्क रेड कलर्स हैं, ये इओसिनोफिल्स में है। और जो बेसिक डाइज के साथ मिथिलिन ब्लू ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ये तो न्यूट्रल है, एकदम न्यूट्रल वाला कलर है। ये मिथिलिन ब्लू जो है ना, बेसिक डाई होता है। अभी आप पूछोगे सर ये डाई क्या होता है, आपके बुक में भी, टेक्स्ट बुक में दिया है कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में न्यूट्रोफिल स्टेन विथ न्यूट्रल डाई। सी, जब भी हम कोई स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो अभी ये सेल में कैसा होता है, एक स्लाइड होता है, स्लाइड, राइट। स्लाइड में देखते हैं, सपोज ये माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू मैं देख रहा हूं, और इस माइक्रोस्कोप के अंदर मैं देख रहा हूं, राइट। और इसमें मैंने एक ब्लड का सैंपल ले लिया किसी पेशेंट का सपोज, और मैंने स्लाइड पे डाल दिया, इसे देख रहे हो आप। अभी ये सैंपल डालने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ डाइज ऐड करूंगा, डाई। इसको अलग अलग डाई होते हैं क्योंकि हर एक सेल एक अलग डाई को एक्सेप्ट करता है। अभी इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर आरबीसीज है, हमने देखा इसमें अलग अलग प्लेटलेट्स भी होते हैं, WBCs भी होते हैं। तो हमें WBCs का काउंट समझना है कि कितना है। सपोज मुझे देखना है कि WBC का काउंट कितना है, या फिर वो नॉर्मल है क्या किसी पेशेंट में, किसी वजह से कुछ कैंसर या कोई डिसीज तो नहीं है पेशेंट को। अगर हमें डायग्नोज करना है तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज दिस डाई। देन ये क्या करेगा, लैब में जो भी होंगे डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या है। तो जब देखोगे और डाई डालोगे तो एक अलग कलर लेंगे। अब सपोज हमने देखा न्यूट्रोफिल्स आर स्टेन्ड विथ न्यूट्रल डाइज, राइट। तो न्यूट्रल डाई होगा इसमें, तो इसमें ग्रैन्यूल्स जो है ना वो न्यूट्रल डाई के कलर के दिखेंगे, एकदम लाइट, राइट। फिर इओसिनोफिल्स आर स्टेन्ड विथ डार्क रेड ग्रैन्यूल्स होते तो डार्क ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, और उसमें 2 लोब वाला न्यूक्लियस दिखेगा, तो मैं समझ लूंगा कि ये इओसिनोफिल्स है। और इनका काउंट कितना होता है, 2 to 3%। अगर मुझे इससे ज्यादा लगा तो मैं रिपोर्ट्स में दूंगा कि इओसिनोफिल्स आर इंक्रीज, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चर के इस स्लाइड में मुझे दिख रहे हैं, राइट। सो ये इंपॉर्टेंस है, आपको जो टेक्स्ट बुक में जैसे चार्ट दिया है, जब आप पढ़ोगे घर जाके आफ्टर सेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो इट इज जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाई। क्यों हमने डाला है, आपको क्यों दिया है,
क्योंकि हमें समझना है ना पेशेंट में क्या बढ़ा है, अगर XYZ पेशेंट में क्या है, क्यों बढ़ा है ये सेल्स, राइट। इसलिए तो इम्पोर्टेंस है ये सेल्स स्टडी करने का, बिकॉज दे हेल्प टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डिसीजेस, इन्फेक्शंस विच ऑकर्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी, जिसमें डिफेंस सिस्टम के WBCs बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, अलग अलग कैंसर्स है, डिफरेंट कंडीशंस। तो इसका स्टडी करने के लिए हम सेल्स में डाई डालते हैं और देखते हैं। और ये ग्रैन्यूल्स होता है, सपोज ये है न्यूट्रोफिल और ये है न्यूट्रोफिल्स के ग्रैन्यूल्स, ये लोब न्यूक्लियस है 3 to 4 लोब्स वाला, एक ही न्यूक्लियस है सिंगल। तो इसने डाई ले लिया तो मैं समझूंगा अरे ये सेल को 3 to 4 लोब्स है, इसमें न्यूट्रल डाई से स्टेन हो गए हैं ये ग्रैन्यूल्स जो प्रेजेंट है, इसका मीनिंग ये न्यूट्रोफिल्स है। अच्छा नॉर्मल स्ट्रक्चर तो है ना, न्यूक्लियस तो ब्रेक हुआ नहीं है ना, ग्रैन्यूल्स का काउंट तो सही है ना, सेल का आउटर सेल वॉल तो सही है ना, ग्रोथ तो सही हो रही है ना। इससे हमें समझेगा कि न्यूट्रोफिल्स आर फंक्शनिंग वेल इनसाइड ब्लड, राइट। और जो उनका काम है वर्किंग अगेंस्ट द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी वो सही से कर रहे हैं। ओके, आसान है। सो नेक्स्ट मूविंग बैक टू दिस स्लाइड, जिसमें हमने 5 टाइप्स ऑफ WBCs देखे, न्यूट्रोफिल देखा, इओसिनोफिल्स का देखा ना हमने, 2 लोब्स होता है। कितने लोब्स? हर एक सेल का एक फीचर है। अब इसमें क्या है, हाँ तो आप बोलोगे सर इसमें 2 लोब्स है, एक ही न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस के 2 लोब्स बन गए, देख रहे हो आप कैसा शेप बन गया है। और इसमें ये रेड ग्रैन्यूल्स है विच स्टेन विथ डार्क रेड स्टेन, अल्सो कॉल्ड एज इओसिन और एसिड डाई। इओसिन से ही नाम बना है इनका। इओसिन इज वन ऑफ द नेम फॉर डाई विच इज रेड, डार्क रेड, और इसलिए हमने क्या बोला ये इओसिनोफिल है। नाम समझ में आ रहा है आपको कैसे बने हैं? एवरीथिंग इन बायोलॉजी इज लॉजिकल, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ो और कुछ भी दे दिया है। नो, इट इज ऑल अबाउट अवर बॉडी, द थिंग्स इनसाइड अवर बॉडी, ब्लड एंड एवरीथिंग। सो इनके नाम भी लॉजिकल है। अगर ऐसे याद रखोगे तो आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट भी आ जाए तो आप लिख पाओगे कि न्यूट्रोफिल है। हाँ, न्यूट्रो इज न्यूट्रल डाई, न्यूट्रल डाई से स्टेन होते हैं, और स्टेन होते हैं यानी इनके अंदर ग्रैन्यूल्स भी है, राइट। इओसिनोफिल, इओसिन डाई यानी डार्क रेड, डार्क रेड। फिर तीसरा नाम है बेसोफिल। अब बेसोफिल क्या है तो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। बेसोफिल में एक न्यूक्लियस होता है विच इज लार्ज एंड इनडिस्टिंक्टली लोब्ड, लार्ज होता है बट एक कोई साइड में ऐसा लोब निकल जाता है उसका, नॉट नेसेसरी। इसमें कैसे इओसिनोफिल में प्रॉपर 2 लोब्स दिख रहे हैं आपको, ये एक है इस साइड में, इस साइड में एक ही न्यूक्लियस के 2 लोब्स बन गए हैं। लोब्स, यू अंडरस्टैंड ना, जैसे ब्रांच होता है कोई ऐसे। दैट वे बेसोफिल्स में ये किससे स्टेन होता है? बेसिक डाई से। ये तो हमें पता है, आप बोलोगे हाँ सर अभी समझ गया, बेसो नाम में ही है, बेसिक डाई। द अनदर नेम फॉर बेसिक डाई इज मेथिलीन ब्लू, नाम में ही है मेथिलीन ब्लू। तो मेथिलीन ब्लू है तो वो ग्रैन्यूल्स कौन सा कलर लेंगे इसमें? ब्लू कलर, दिख रहा है आपको? ब्लू कलर से स्टेन्ड है ये सब ग्रैन्यूल्स, दिस इज इट। तो हमने समझ लिया ग्रैन्युलर WBCs कैसे होते हैं, 1 2 3, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। आसान है। अभी हमने न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन देखा, फैगोसाइटोसिस। अभी हम इओसिनोफिल का फंक्शन देखेंगे। इओसिनोफिल क्या करते हैं? तो इओसिनोफिल्स, ये जो इओसिनोफिल्स है, दे हेल्प इन व्हाट? दे हेल्प इन एलर्जिक कंडीशंस। समझ में आ रहा है आपको? एलर्जी पता है ना सबको क्या होता है, हम सीखेंगे आगे एग्जैक्टली कैसे एलर्जी में डिफरेंट सेल्स का फंक्शन होता है। अभी के लिए आपको याद रखना है इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स सेकंड टाइप ऑफ ग्रैन्युलर WBC, सेकंड टाइप, जिसका हमने स्ट्रक्चर और फीचर्स देखे। उनका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज द एंगल्फ बैक्टीरिया लाइक न्यूट्रोफिल, बट इनका प्रोसेस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस नहीं होता है, वो सिर्फ न्यूट्रोफिल में होता है। हम सीखेंगे क्या होता है फैगोसाइटोसिस। सी सो इओसिनोफिल्स एंगल्फ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खा लिया, ये कोई बैक्टीरिया है तो ये सेल ने खा लिया। सेकंड, दे सिक्रीट एंटीटॉक्सिन्स। हम ये भी सीखेंगे आगे कि एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, जो कि टॉक्सिन्स के अगेंस्ट। एंटी इज समथिंग विच इज वर्किंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर थिंग, टॉक्सिन्स के अगेंस्ट जो वर्क करेगा उसे क्या कहेंगे हम? एंटीटॉक्सिन्स। ऑल्सो दे आर एसोसिएटेड विथ एलर्जी,
किसी किसी को एलर्जी होता है ना, किसी को फूड का होता है, किसी को क्लाइमेट का होता है, किसी को किस चीज़ का होता है। सो एलर्जी एक रिएक्शन है जो कि हम आगे देखेंगे कैसे होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ इओसिनोफिल्स। ये तो समझ गया, आसान है आपको, राइट। देन लेट्स गेट बैक टू दिस स्लाइड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, टाइप्स ऑफ WBCs, राइट। बेसोफिल्स का स्ट्रक्चर हमने देखा, क्या होता है क्या नहीं होता है। सो अभी बेसोफिल्स में आपको पता है ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, दे सिक्रेट और रिलीज अ केमिकल। हर एक ग्रैन्यूल्स का कुछ फंक्शन है। जैसे न्यूट्रोफिल्स में लाइजोजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। हम सीखेंगे फैगोसाइटोसिस इज डिफरेंट। प्रॉपरली आपको टेक्स्ट बुक में दिया है कि क्या है फैगोसाइटोसिस। उस पर शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है, या फिर उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होना चाहिए। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ विजुअल। बट पहले हमें बेसिक टाइप सीख लेना है। सो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। बेसोफिल रिलीज हिस्टामिन। क्या रिलीज करते हैं ये? हिस्टामिन एक केमिकल है, मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होता है, सिर्फ अभी के लिए नाम याद रखिए। हिस्टामिन विच हेल्प्स इन इन्फ्लामेशन एंड डायलेट द ब्लड वेसल्स। इन्फ्लामेशन क्या है वो भी हम आगे सीखेंगे, सिर्फ आपको इनका फंक्शन याद रखना है। नेक्स्ट major type of WBCs are non granular. A, suppose this is capital A, granular. इनके अंदर ये 3 टाइप्स आते हैं। कैपिटल B, नॉन ग्रैनुलर टाइप्स ऑफ WBCs। इनमें अगेन 2 टाइप्स, फोर्थ इन द सीरीज मोनोसाइट। व्हाट इज मोनोसाइट्स? दे आर 30% ऑफ ऑल द WBCs। ये तो देख लिया 62, 2 to 3%। और बेसोफिल तो सिर्फ 0 to 4% होते हैं, बहुत कम होते हैं। उनका रोल भी स्पेसिफिक है, एलर्जी जब होता है तभी वो एक्शन में आ जाते हैं, ब्लड में, टिश्यूज में, राइट। इन द सेम वे मोनोसाइट क्या करेंगे? दे आर 30%, यानी ऑलमोस्ट न्यूट्रोफिल के बाद जो सबसे ज्यादा है वो मोनोसाइट है, राइट। दे आर 30, दिस इज मोनोसाइट्स आर 5 to 3%, आई एम सो सॉरी, दे आर 5 to 3%। वो लिम्फोसाइट है काउंट। तो न्यूट्रोफिल के बाद लिम्फोसाइट का काउंट ज्यादा होता है विच इज 30%। लास्ट में टेक्स्ट बुक में आपके सीरीज में जो दिया है मैं उस हिसाब से बता रहा था, बट इन दिस पिक्चर हमने पहले मोनोसाइट सीखना है, फिर लिम्फोसाइट, राइट। या फिर सीक्वेंस में सीखेंगे तो लिम्फोसाइट बताता हूं मैं। लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलेस्ट ऑफ WBCs, याद रखना है, सबसे स्मॉल। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा आउट ऑफ ऑल द व्हाइट ब्लड सेल्स विच सेल इज स्मॉलेस्ट व्हाइट ब्लड सेल, या फिर सिंपली विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट व्हाइट ब्लड सेल्स, और फिल इन द ब्लैंक, देन यू शुड आंसर लिम्फोसाइट। ये सबसे छोटे होते हैं, आप देख सकते हो, कंपेयर करो। ये स्लाइड में आपको दिख रहा है, राइट, ये स्लाइड में आपको दिख रहा है। सो लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलेस्ट, सो ये स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ WBCs। अब इनका फीचर क्या है? इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, हमने अभी देखा क्या, ये नॉन ग्रैन्युलर है। इनमें कहीं दिख रहा है क्या? साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड दिस न्यूक्लियस इज सिंगल लार्ज। देखिए ये सिंगल लार्ज न्यूक्लियस पूरे सेल को फिलअप कर रहा है, यहाँ पे तो जगह भी नहीं है साइटोप्लाज्म को देखने के लिए, और ग्रैन्यूल्स का कोई फंक्शन भी नहीं है। अब वो क्यों नहीं है और ये डिफेंस में कैसे हेल्प करते हैं हम आगे सीखेंगे। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। हम वो सीखेंगे जो फंक्शन है लिम्फोसाइट का। व्हाट? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स, राइट। क्लियर? लास्ट सेल इज मोनोसाइट, जो कितना है 5 to 3% इन ब्लड। अगेन लार्ज शेप्ड, लार्ज WBC है ये, लार्जेस्ट ऑफ WBC। आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट दोनों नॉन ग्रैनुलर कैटेगरी के हैं। दिस वन इज लार्जेस्ट, आपको दिख रहा है ना, लार्जेस्ट ऑफ WBC। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल किडनी के शेप का होता है। सी, हमारे किडनी जब आप सीखोगे ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में, या फिर आपने 8th and 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, किडनीज आर दिस शेप, ऐसे होते हैं ना ये किडनी शेप। तो किडनी ऑर्गन के शेप जैसा इनका न्यूक्लियस होता है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस पिंक स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट, इसलिए इसे बोलते हैं किडनी शेप न्यूक्लियस। ये जो होते हैं ना सेल्स, ये इन्फेक्शन के वहां पे जाके मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं। किसमें? मैक्रोफेज। अगेन मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ याद रखिए, M फॉर मोनोसाइट, M फॉर मैक्रोफेज। यही सेल कन्वर्ट होता है मैक्रोफेज, और ये मैक्रोफेज क्या करेगा? ये भी बैक्टीरिया को खा लेगा।
अब वो कैसे खाएगा, ये सब WBC कैसे फंक्शन करेंगे, हम ये अंडर द हेडिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल्स सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, ऑल क्लियर? सो नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन? ल्यूकोसाइट्स का मीनिंग क्या है? ल्यूको व्हाइट, साइट सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC शॉर्ट फॉर्म, राइट? सो द मेन फंक्शन इज बॉडी डिफेंस। सबको पता है, हमने सीखा है कि जैसे RBCs का फंक्शन ऑक्सीजन में है, वैसे WBCs का फंक्शन बॉडी डिफेंस, दे आर पार्ट ऑफ वॉरियर सिस्टम, राइट? हमारा जो इम्यूनिटी होता है, आप सबको पता है ना, हम बोलते हैं कभी कभी यार इसका इम्यूनिटी बहुत कम है, या फिर कभी आपको डॉक्टर्स बोलते हैं आपको जुकाम हो जाए तो अरे यार आपका इम्यूनिटी बहुत कम है, बच्चे को अच्छा खाना दो, ग्रीन वेजिटेबल्स दो, अच्छा फूड दो। सो विटामिन बहुत जरूरी है अगर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को फंक्शन करना है तो। सो दैट इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी, राइट? समझ में आ रहा है? सो हम सीखेंगे कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे हेल्प करते हैं हमें इम्यूनिटी में। अगर कोई XYZ बैक्टीरिया, वायरस अगर आ गया बॉडी के अंदर, तो ये कैसे व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे अलग अलग टाइप्स के, और ये क्या करेंगे कि ये वायरस या बैक्टीरिया को फिनिश कर दे और बॉडी के अंदर से निकाल दे बिल्कुल, सो दैट हमारी हेल्थ अच्छी रहे, राइट? हम फिट रहे। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने टाइप्स ऑफ WBCs देख लिया, अब हम उनके फंक्शंस देखेंगे। सो फर्स्ट इन द लिस्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन? फैगोसाइटोसिस, फर्स्ट फंक्शन ऑफ WBC, फैगोसाइटोसिस। याद रखना है आपको नाम, फैगोसाइटोसिस। अब इसका मीनिंग क्या है? आप पूछोगे सर ये टर्म का मीनिंग बताओ आप हमें, तो मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल, फैगोसाइटोसिस। द टर्म फैगोसाइटोसिस में फिर मैंने आपको कहा टर्म को देखिए, फैगो। अब ये फैगो का मीनिंग क्या है? द टर्म, द लेटर और द वर्ड, अगर हम इसे स्प्लिट करें, फैगो मीन्स टू ईट। क्या? टू ईट, खा लेना है, कुछ तो खा रहा है अब ये, यानी WBC है तो किसको खाएगा? ऑब्वियसली इट विल ईट दैट बैक्टीरिया, और उसको अपने अंदर लेके बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा डिफरेंट मैसेंजर्स के थ्रू, ग्रैन्यूल्स के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू डिस्ट्रक्शन करना है हमें उसका। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे? फैगोसाइटोसिस का डेफिनेशन है, दिस इज अ प्रोसेस, प्लीज राइट डाउन। मैंने शुरू में ही कहा है आपको नोट्स बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द की टू सक्सेस, टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट, राइट? सो फैगोसाइटोसिस, write down, this is a process in which most WBCs and particularly, सभी करते हैं बट मेनली कौन करता है? पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स, फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रैन्युलर WBC है ये। न्यूट्रोफिल्स engulf यानी खा लेना, द मीनिंग टर्म engulf particles like solid substances, but ये solid substances living dead तो नहीं होंगे ना, obviously they will be living like bacteria, mainly bacteria को खाएंगे वो, स्पेशली बैक्टीरिया, इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर आपको इनडायरेक्टली डेफिनेशन दे और ऑप्शंस दे कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और आपको ऑप्शंस में दिया डायापेडेसिस, फैगोसाइटोसिस, थर्ड इज ट्रांसपोर्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? इन्फ्लेमेशन, जो कि हम पढ़ेंगे क्या है। तो मैंने आपको पूछा नेम द प्रोसेस इन विच a WBC like neutrophil engulf particle like solid substances, especially bacteria. Your options are diapedesis, phagocytosis, transport, inflammation. आप बोलोगे ये प्रोसेस है अभी डायापेडेसिस, तो आप क्या सोचना है आपको? डायापेडेसिस तो नहीं है यार, क्योंकि हमें सर ने सिखाया था डाया इज समथिंग मूविंग एंड अगेन पेडेसिस इज स्यूडोपोडिया। तो ये फंक्शन है कि WBC कहीं से बाहर निकल रहे हैं, इसमें खाने वाला तो कोई रोल ही नहीं है, बस वो कैपिलरी वॉल से बाहर आ गए। सो इट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, क्लियर? अभी आप पढ़ोगे फैगोसाइटोसिस, हाँ ये लग रहा है, बट इसके पहले मुझे नीचे दो ऑप्शंस को देखना है कि ये तो नहीं है।
अभी ट्रांसपोर्ट इज अ जनरल टर्म ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज ब्लड ट्रांसपोर्ट और एनीथिंग। इसमें कुछ खाने वाला तो है नहीं, एंगल्स तो कोई है नहीं इसमें करना है हमें, ये भी नहीं। इन्फ्लामेशन, अब इन्फ्लामेशन इज समथिंग रेड और रेडिश जो हमारे स्किन में ड्यू टू इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया होता है। तो इन्फ्लामेशन इज अ थिंग और मैनिफेस्टेशन और इट इज अ साइन विच यू सी आफ्टर अटैक ऑफ बैक्टीरिया, कहीं पे भी, ऑर्गन में, स्किन पे, कहीं पे भी। तो इसमें भी कुछ खाने वाला नहीं है। अभी आया है फैगोसाइटोसिस, जो मुझे लग रहा है फैगो इज टू ईट, साइटोसिस इज अ प्रोसेस। सो फैगोसाइटोसिस में एंगल्फ किया है हमने, एंगल्फ इज टू ईट, सो दैट्स द आंसर, यू विल मार्क एज फैगोसाइटोसिस। और वन एंड द सेम अगर डेफिनेशन पूछे तो। सो दिस इज द वे, see MCQ solving is a skill, you need to read all options, you need to rule out कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, या फिर you should be very much sure कि हाँ ये मुझे पक्का याद है, मेरे ब्रेन में बिल्कुल पक्का है। So either ways you need to correctly answer that question, clear है? So अभी हम देखेंगे phagocytosis कैसे होता है through a beautiful visual. So are you ready? So let's go, let's begin. तो अभी ये क्या है, सी दिस इज, क्या पहचानो, अभी हमने सीखा है ये प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस है, ठीक है ना, ये WBC है। और देखो कैसे बैक्टीरिया को इसने खा लिया है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ये किल कर रहा है इसे, राइट। सो बिफोर प्रोसीडिंग, एनीवन प्लीज टेल मी विच, ये जो सेल है, विच इज दिस, विच टाइप ऑफ WBC इज दिस, ये सेल जो है ये कौन सा WBC है, प्लीज बताओ मुझे कोई भी, कम ऑन, मेंटली आंसर करना है। आई नो वी आर लर्निंग इन अ वर्चुअल मीडियम, सो बताओ, देखते हैं कितने लोग आंसर सही करते हैं। अब हमने सेल देखा, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है जिसको कि 1 2 3 4 से 5 लोब लग रहे हैं, 1 2 3 4 तो लोब बिल्कुल है, और इसमें ये ग्रेन्यूल्स भी लग रहे हैं जो न्यूट्रल कलर के हैं। तो अभी तो हमने सीखा था a cell type of white blood cells जिनमें 3 to 4 lobes है जिनके स्ट्रक्चर में, and which stain with the granules of which stain with neutral dye, 3 to 4 lobes वाला न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूट्रोफिल, the most abundant of white blood cells, granular white blood cells, क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स है, राइट। और यही ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है बॉडी में, आपने सीखा है ना, एंजाइम्स क्या करते हैं, हेल्प इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जिसमें, सो दे कैटाबोलाइज द डिफरेंट सब्सटेंसेस, मेनली ब्रेक डाउन द सब्सटेंसेस, राइट। एंजाइम्स इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग डाउन एंड डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें क्या होगा, हमें ये ग्रैन्यूल्स के अंदर से रिलीज होंगे, ये सी, जब ये ग्रीन कलर का बैक्टीरिया अंदर ले लेगा तो ये इमीडिएटली एक सिग्नल आएगा, ये जो ग्रैन्यूल्स है इनके थ्रू सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, लाइसोजाइम्स एंड अदर एंजाइम्स विच विल डिस्टर्ब दिस बैक्टीरिया। बिल्कुल इसे एक वेसिकल बना लेंगे, एक गोल घेर लेंगे और बिल्कुल इसे मार डालेंगे कि नहीं अभी इसका हम बिल्कुल खात्मा कर देंगे, फिनिश, इस एनिमी को हमें फिनिश करना है बिल्कुल, सो दैट ये आगे जाके ये बैक्टीरियाज हमें कोई इन्फेक्शन ना कर दे, किसी ऑर्गन को डैमेज ना कर दे। सो दैट्स द रीजन, अगर ये फ्लोइंग ब्लड है, ब्लड वेसल, तो यहाँ पे ये WBC जा रहा है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डायापेडेसिस। हमने सीखा है डायापेडेसिस से सिर्फ आना है, आगे जाके एक बार टिश्यू में आ गया ये सेल, फिर ये खाएगा बैक्टीरिया को। तो दिस इज अ प्रोसेस, ऑल क्लियर। हम फिर से देखेंगे कैसे होता है ये, सी जस्ट फोकस ऑन विजुअल। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या पार्ट्स है और कैसे होता है, राइट। सो लेट्स सी, दिस इज अ न्यूट्रोफिल, फैगोसाइटोसिस, देखो कैसे ले लिया है अंदर, ग्रीन कलर्ड बैक्टीरिया है ये, ग्रीन कलर्ड बैक्टीरिया, देन अभी वेसिकल्स आ गए हैं, उन्होंने एंजाइम्स रिलीज कर दिए हैं और बिल्कुल इस बैक्टीरिया को हमें डिस्ट्रॉय करना है। देखिए कैसे पार्टिकल्स में बन गया है ये बैक्टीरिया, आपको दिख रहा है, बिल्कुल किल कर दिया इसे। दीज आर डाइजेशन प्रोडक्ट्स, और अभी क्या होगा, फिर इसे रिलीज कर देंगे, काम खत्म।
अभी क्या, अभी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे सभी बैक्टीरियाज को ये अलग अलग सेल्स आएंगे, बहुत सारे सेल्स आएंगे ऐसे। न्यूट्रोफिल्स बहुत सारे हैं, 63% ऑलमोस्ट, तो बहुत सारे आ जाएंगे। हर एक बैक्टीरिया को इसी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वो खा लेंगे और बॉडी से रिमूव कर देंगे। आसान है। ऑल क्लियर अबाउट फैगोसाइटोसिस? क्लियर है फैगोसाइटोसिस? अभी ये फर्स्ट फंक्शन था WBCs का। अभी हम पढ़ेंगे सेकंड फंक्शन ऑफ WBCs, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लामेशन। अभी इन्फ्लामेशन क्या होता है हम वो सीखेंगे। सो सेकंड फंक्शन ऑफ WBCs इज इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन क्या है, आप पूछोगे सर व्हाट इज दिस टर्म? सो सिंपली इन्फ्लामेशन इज अ प्रोसेस which occurs due to the reaction of tissues to injury and to a localized invasion of germs, exactly as given in your textbook. यही लिखना है आपको। ओके, मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इट विल बी इन सिंपल लैंग्वेज, बट आपको नोट्स अभी बनाना है और उसमें यही लिखना है। इट इज द प्रोसेस ऑकर्स ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टिश्यूज। कोई टिश्यूज हैं जो रिएक्शन दे रहे हैं, एक प्रोसेस है ये। इंजुरी, टू अ इंजुरी, सपोज अभी ये मैंने आपको पिक्चर दिखाया है, ये एक पेशेंट है XYZ, ये हॉस्पिटल में आया है, राइट? और एज अ डॉक्टर अगर मेरे पास ये पेशेंट आए तो मैं देखूंगा, अरे हाँ ये सब तो रेड हो गया है, इसका पैर पूरा रेड हो गया है, कुछ इन्फेक्शन जरूर हुआ है, कोई बैक्टीरिया या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ ट्रॉमा हो या बैक्टीरिया हो या एनीथिंग, ट्रॉमा, बैक्टीरिया। सो एज अ डॉक्टर माई पार्ट इज टू गिव मेडिसिन, बट अभी आप एज अ स्टूडेंट आपको एग्जाम में क्या करना है? यू हैव नथिंग टू डू अबाउट मेडिसिन। आपको समझना है कि इन्फ्लामेशन में क्या होता है, क्या दिख रहा है, और अंदर ब्लड में कौन से सेल्स है जो वर्क कर रहे हैं। दैट इज ऑल अबाउट, आपको समझना है बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। दैट्स योर रोल एज अ स्टूडेंट, राइट? तो हम क्या समझेंगे अभी? इट ऑकर्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ टिश्यूज, यानी ये कुछ तो रिएक्शन हुआ है ना, रेडिश रेडिश हो गया है ये सब कुछ पैर इस पेशेंट का, दिख रहा है आपको? सी, रेडिश 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 पूरा, यहाँ पे कुछ लग रहा है, पर्स भी निकला है, पर्स येलो होता है। सो इट इज ऑल अबाउट रेडनेस, लोकल हीट, स्वेलिंग एंड पेन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अगर आपको कोई पूछे इन्फ्लामेशन के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लामेशन, तो आप क्या बताओगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लामेशन आर, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, बहुत आसान है। फर्स्ट, लोकल हीट। अब बर्निंग होगा ना, रेडनेस है तो हीट भी प्रोड्यूस होगा, सो लोकली उस टिश्यू में। सी, सेकंड पिक्चर भी मैंने रखा है आपके लिए, ये फुट है, दिख रहा है आपको यहाँ पे पेशेंट में कैसे रेडनेस हुआ है। सो लोकल हीट, अगर आप ये पिक्चर भी एग्जाम में याद कर लो कि हाँ सर ने हमें ये पिक्चर दिखाया था, तो हमें पता है इन्फ्लामेशन यानी समथिंग, रेडनेस, लोकल हीट, देन देयर इज स्वेलिंग। आपको दिख रहा है ये फुट स्वेलिंग हो गया है। ऊपर भी देखो, ये पेशेंट का लेग दिख रहा है ना कैसे स्वेल हो गया है एकदम, फुट, फिंगर्स, दिस लोअर पोर्शन ऑफ द लेग, सो स्वेलिंग भी होगा। तो सेकंड क्या है कैरेक्टरिस्टिक? स्वेलिंग। थर्ड वन, पेन। अभी पेशेंट को इतना बर्निंग है, स्वेलिंग है, तो पेन तो होगा ही। अरे हमें अगर छोटा सा थॉर्न प्रिक भी हो जाए या कुछ प्रिक भी हो जाए तो हमें पेन होता है। तो दिस इज वन ऑफ द पिक्चर जिसमें दिख रहा है आपको कितना ज्यादा इन्फ्लामेशन हुआ है। तो पेन, माइनर और मेजर, पेन तो होना ही है, क्योंकि न्यूरॉन सिग्नल लेंगे कि कुछ तो हुआ है बॉडी को, तो पेन होगा, राइट? एंड रेडनेस, ऑब्वियसली रेडनेस तो है ही, ऑब्वियस है, दिख रहा है पिक्चर में। तो आसान है, कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया हमने। अभी हम देखेंगे कि इन्फ्लामेशन में एग्जैक्टली क्या होता है। हमने ये तो देख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्स निकलेगा, कभी कभी पता है आपको यहाँ से पर्स भी निकलता है। तो पर्स यानी क्या है, आपके बुक में भी दिया है, ये देखो येलो 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 पर्स दिख रहा है आपको। सो दिस पर्स मीन्स, ये जो येलो येलो अगर कहीं से निकल गया, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है बट बहुत बार आगे निकलता है, ये पेशेंट में डिस्चार्ज होता है, हम कॉटन के थ्रू देखते हैं। सो पर्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड व्हाइट ब्लड सेल्स, डेड व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs एंड व्हाट अदर डिस्ट्रॉइड बैक्टीरिया। यहाँ पे ऑलरेडी WBCs ने काम किया है, तो इसमें डिस्ट्रॉइड बैक्टीरियाज भी होंगे जो कि मर चुके हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, एंटीबॉडीज एटसेट्रा, जो हम एंटीबॉडीज का सीखेंगे। फैगोसाइटोसिस सीख लिया है, अभी हम समझेंगे इन्फ्लामेशन कैसे होता है, राइट? सो जस्ट फोकस हियर। सी, ये जो ब्यूटीफुल स्लाइड मैंने आपके सामने रखी है स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फ्लामेशन कैसे होता है। सी,
सपोज दिस इज वन ऑफ द वुडन स्टिक, गलती से ये मेरा स्किन है, आउटर इज द स्किन लेयर, तो क्या हुआ, गलती से मुझे प्रिक हो गया है, हार्मफुल थिंग्स एंटर इनटू बॉडी, सपोज दिस आर द बैक्टीरियास और समथिंग जो कि ये टिश्यू में आ चुके हैं, दिस इज टिश्यू। और ये जो रेड वेसल दिख रहा है आपको, दिस इज ब्लड वेसल्स कैरिंग डिफरेंट ब्लड सेल्स, आरबीसी तो है ही मेजोरिटी, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं आपको, दिस ब्लू सेल्स आर डब्ल्यूबीसी। तो अभी यहाँ पे एंट्री तो हो गई है, तो अब क्या होगा, जब मैं ये निकाल दूंगा, ये वुडन स्टिक स्किन से बाहर छोटा सा है, तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पे रेडनेस हुआ है, पेन, स्वेलिंग, वार्मथ यानी लोकल हीट एंड रेडनेस, दिस आर द 4 फीचर ऑफ इन्फ्लामेशन जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको राइट सेकंड साइड में। सो हाउ इट वर्क्स, सो अभी क्या होगा, डब्ल्यूबीसी को समझ गया है कि कुछ तो एंट्री बॉस हो गया है हमारे स्किन टिश्यूज में, कोई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आ गया है, नाउ इज द टाइम टू फाइट अगेंस्ट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिर क्या करेगा ये डब्ल्यूबीसी, यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा थ्रू अ प्रोसेस ऑफ, कैसे निकलेगा बाहर बताओ, हमने सीखा है, विच इज दैट प्रोसेस, डायापेडेसिस, डायापेडेसिस के थ्रू, स्यूडोपोडियस के थ्रू बाहर आया। ऐसे बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज है जो डायापेडेसिस के थ्रू बाहर आएंगे और यहाँ टिश्यूज में जो ये बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी इन्फेक्शन हुआ है यहाँ पे इनको एंगल्फ करेंगे। अब एंगल्फ यानी ईट करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कम ऑन, हमने अभी सीखा है, इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सो व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, इट इज ऑल अबाउट डायापेडेसिस एंड फैगोसाइटोसिस ऑफ डब्ल्यूबीसीज, जो न्यूट्रोफिल्स है मेनली एंड अदर। तो ये सब आएंगे और इसे खा लेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे बैक्टीरिया को, आसान है। अब ये कैसे होता है ये प्रोसेस, आप ही देख लो, ऐसे होता है। सपोज ये एक छोटा सा बच्चा है, राइट, दिख रहा है आपको, गलती से वाइल पिकिंग अ फ्लावर ऑफ रोज उसको प्रिक हो गया है, थॉर्न प्रिक, राइट, देखिए स्क्रीन पे। अभी प्रिक होने की वजह से इसके हैंड्स में जो प्रिक हो गया है, इसे क्या होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ब्लड हो रहा है और प्रिक होने की वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन आ गया है, देखिए कैसे उसने लिया है फ्लावर को, और प्रिक होते ही मैग्नीफाई किया है, ये थॉर्न है, ये थॉर्न, दिस इज थॉर्न, राइट। तो इसमें जो ये ग्रीनिश बैक्टीरियाज है, दिख रहा है आपको, ये मैंने मार्क किया, ये अंदर आएंगे क्योंकि थॉर्न प्रिक हो गया तो कुछ इन्फेक्शन तो होना ही है, राइट। सो ये ग्रीनिश बैक्टीरिया अभी आ गए हैं टिश्यूज में, देखो कैसे थॉर्न को निकाल दिया है, इस जगह पे रेडनेस स्वेलिंग हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, टिश्यू डैमेज हो गया है, और यहां से नीचे ये ब्लड वेसल है, दिख रहा है, ये देखो आरबीसीज फ्लो हो रहे हैं, ये बड़े वाले डब्ल्यूबीसीज है जो बड़े साइज के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, राइट। अभी बैक्टीरिया ने टिश्यू में एंट्री ले ली है, ग्रीन कलर्ड, दिख रहा है आपको, सी। अभी इस बैक्टीरियल डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन होगा, बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे कि चलो अभी हम अटैक करेंगे, अभी हम स्किन में अटैक करेंगे। तो इमीडिएटली क्या होगा, यहाँ पे एक सेल्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं मास्ट सेल्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इन थर्ड पार्ट। ये क्या करेंगे, हिस्टामिन रिलीज करेंगे। इओसिनोफिल्स भी होते हैं यहाँ पे, ब्लड में भी होते हैं, वो भी हिस्टामिन रिलीज करेंगे। हिस्टामिन हेल्प्स इन रिएक्शन, और उसके बाद क्या होगा, वहां पे रेडनिंग एंड सेंसेशन ऑफ हीट होगा, इट इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, राइट, ड्यू टू हिस्टामिन। अभी ये जो सेल्स है वेसल्स के, दिस इज ब्लड वेसल, अभी क्या होना है, न्यूट्रोफिल को सिग्नल मिल गया है कि मास्ट सेल्स एंड हिस्टामिन हैज बीन रिलीज्ड इन द टिश्यू, दिस इज द टाइम आई नीड टू वर्क। और क्या होगा, फिर स्टिम्युलेशंस के थ्रू एक डब्ल्यूबीसी आया आया आया, ये फैगोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, देखो कैसे जा रहे हैं ये, राइट, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, अभी ये यहाँ से डायापेडेसिस के थ्रू बाहर निकला, देखो 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 कैसे निकल रहा है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डायापेडेसिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज गिवन इन दिस ब्यूटीफुल विजुअल, राइट। अभी आ गए हैं, अभी क्या करेंगे, आ जाओ बॉस, अभी हम आपको खाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ग्रैन्यूल्स, और इसे खा लिया है, सी ऑल ग्रीन कलर्ड बैक्टीरिया को हमने खा लिया, दिस इज द प्रोसेस ऑफ
फैगोसाइटोसिस, डायापेरेसिस एंड इन्फ्लामेशन। सब कुछ हमने एक ही में सीख लिया है, आसान है। ओके, सो थर्ड फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे एंड दैट इज, सो द थर्ड फंक्शन ऑफ WBC एंड लास्ट फंक्शन है ये WBC में, एंड देन विल बी डन विद WBC, दैट इज formation of antibodies. Anti means something opposite, so antibodies are against antigens. आपको पहले तो ये समझना है कि antibodies are produced by our body, human body, our human body. नाम में ही है, bodies आया है यानी हमने तैयार किया है, हम body है, human body, और anti यानी against something, and then there comes another word antigens. Antigens यानी क्या होते हैं? ये है एक बैक्टीरिया और एनी माइक्रोब जो कि इन्फेक्शन करता है। इसमें ये जो दिख रहा है आपको पिन पॉइंट वाले स्पाइक्स दिख रहे हैं ना, बुलेट्स की तरह, ये क्या है? ये है इसके एंटीजेंस, और इन्हीं की वजह से हमें इन्फेक्शन होता है, पता है? यही है वो, ये है हमारे एनिमीज, राइट, जो हमारे अगेंस्ट हमारे बॉडी में हमें इन्फेक्शन करना चाहते हैं। तो नाउ द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC, राइट, याद आ रहा है, हमने शुरू में सीखा है लेक्चर में। एंड विच टाइप ऑफ WBC इट इज? इट इज नॉन ग्रैन्युलर टाइप ऑफ WBC, याद है ना? ग्रैन्युलर, नॉन ग्रैन्युलर, नॉन ग्रैन्युलर में दो है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स आर ऑलमोस्ट 30% स्मॉलेस्ट ऑफ WBC है, और इसमें क्या होता है? सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। और इसमें आपको ये वाई शेप दिख रहा है, ये क्या है? वाई लेटर है, राइट। तो ये जो वाई शेप्ड है ना, ये है एंटीबॉडीज, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एंटीजन। अब वो कैसे करते हैं हम आगे सीखेंगे थ्रू द विजुअल, बट अभी के लिए आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है कि कैसे होता है। ये एक लिम्फोसाइट है, इसने ये वाई शेप्ड एंटीबॉडीज है जिसमें ये वायरस फिट इन हो जाएगा। इसका ये बुलेट शेप दिख रहा है, सपोज मैंने इसे निकाल के यहाँ पे फिट इन किया तो ये इसे रिकॉग्नाइज करेगा, सी, राइट। ये क्या करेगा? हर एक लिम्फोसाइट पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होती है कि हाँ अभी मैं इस एनिमी को मारूंगा, अभी मैं इसको। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी, राइट, हर चीज स्पेसिफिक है। सो एंटीबॉडी है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। किसी को टाइफाइड होता है, किसी को मलेरिया होता है, किसी को डेंगू होता है, हम सुनते हैं आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है। तो हर एक वायरस का एक फंक्शन अलग है, तभी तो अलग अलग मेडिसिन देते हैं। तो उनके एंटीजेंस भी अलग है, ये एनिमीज भी अलग है, तो इनके अगेंस्ट वर्क करने के लिए हमें एंटीबॉडीज भी अलग अलग बनाने पड़ेंगे, विच आर मोर पावरफुल। दे आर लाइक वॉरियर सिस्टम, जो हर बार एक नया, एक कोई मिसाइल होता है ना, उसी तरह से वर्क करता है। वो एक नया एंटीबॉडी निकालेंगे जिसको हम इसके अंदर पकड़ेंगे और फिर इसको न्यूट्रोफिल्स को दे देंगे और वो खा लेगा और बॉडी से बाहर निकाल देगा, सो दैट इन्फेक्शन नहीं होगा, राइट। समझ में आ रहा है? अगेन सी इन दिस डायग्राम जो कि नीचे दिया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से एक लिम्फोसाइट है, राइट। ये एक लिम्फोसाइट है और ये क्या है? ये स्ट्रक्चर, ये वाई शेप्ड होते हैं एक्चुअली, जिसमें कि एंटीजन बैठ सकेगा। दिस इज एंटीबॉडी, ये देख रहे हो आपको वाई शेप्ड, ये रिलीज कर देगा। तो ये क्या होता है? इसे रिलीज कर देता है ब्लड में और ये पकड़ लेता है इस एंटीजन को। ये दिख रहा है स्पाइक शेप्ड, मैंने बोला ना ये बुलेट्स होते हैं, बुलेट्स आर लाइक अवर एनिमीज। ये इसमें फिट इन होगा और फिर क्या करेगा? इसको ये डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएगा, ले लेगा और फिर इसको प्रेजेंट करेगा न्यूट्रोफिल्स को, जो इसे खा लेंगे। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, हम ये जरूर सीखेंगे एक विजुअल के थ्रू, बट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि WBCs लाइक lymphocytes प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच किल और न्यूट्रलाइज द जर्म्स, इनको किल कर रहे हैं, और द पॉइजनस सब्सटेंसेस, राइट, इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। और यही कॉन्सेप्ट है आगे हम वैक्सीनेशन लोगों को देते हैं, पोलियो वैक्सीन और डिफरेंट वैक्सीन, वो कैसे है हम वो भी देखेंगे। पहले तो आप ये समझ लो कि फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज कैसे होता है, वो हम देखेंगे थ्रू दिस विजुअल। लेट्स स्टार्ट। देखिए ये एक पैथोजन बैक्टीरियम आ गया है, ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, लाइक अ बुलेट, बिल्कुल एंट्री कर लिया है इसने। अभी ये इस लिम्फोसाइट को तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, देख रहे हो आप, ये जाके इस लिम्फोसाइट को कनेक्ट होगा, क्योंकि हर एक लिम्फोसाइट स्पेसिफिक है। दिख रहा है आपको कैसे हाईलाइट हो रही है ये लिम्फोसाइट। अभी ये इसे ले लेगा, कनेक्ट कर देगा अपने अंदर, राइट। उसने डिटेक्ट कर लिया, इनका प्रोलिफरेशन होगा यानी डिवीजन होगा।
एक लिम्फोसाइट से 4 लिम्फोसाइट्स बन गए, क्योंकि इसने समझ लिया है कि इस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमने जगह ढूंढ ली है। फिर क्या होगा, अभी जो सेल्स बने हैं लिम्फोसाइट्स के, ये एंटीबॉडीज को ब्लड में सिक्रीट करेंगे। दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये एंटीबॉडीज है स्पेसिफिक, राइट। और ये क्या हो रहा है, देख रहे हो, ये ब्लड वेसल्स है या फिर ये टिश्यू है, इसके अंदर सिक्रीट हो गए हैं, ऑल आर एंटीबॉडीज, राइट, एंटीबॉडीज। अभी क्या होगा, अभी ये बैक्टीरियम को ये फिनिश करेंगे। इतने सारे एंटीबॉडीज रेडी हो गए हैं, देखो कैसे खा रहे हैं वो, आके सबने घेर लिया है इस बैक्टीरिया को। स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी ये जो बैक्टीरिया है और एंटीबॉडीज है, और अब इसको इन्होंने पकड़ लिया, घेर लिया। अभी न्यूट्रोफिल आ गया, 3-4 लोब ग्रैन्यूल्स, इसने इसको अंदर ले लिया अपने, हमने पहचान लिया है बैक्टीरिया को, राइट। और अब इसको अंदर से ग्रैन्यूल्स के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देंगे। आया समझ में कैसे साइमल्टेनियस फंक्शन है सब इन सेल्स का, बिल्कुल मिलजुल के हेल्प करते हैं एक दूसरे को WBC, सो दैट कुछ भी करके हमें एनिमी को पार्टिकल्स में ब्रेक करके बिल्कुल से फिनिश कर देना है और बॉडी के थ्रू उनकी छुट्टी कर देना है बिल्कुल से। क्लियर है, आसान तो है एकदम, मजेदार है ना। हाँ, तो ऐसे ही होता है हमारा ह्यूमन बॉडी, एवरीथिंग इज जस्ट सो रिलेटेबल अगर हम इसे समझे तो, राइट। So all clear about the functions of WBCs, right? So these are the 3 main functions. हमने phagocytosis देखा, inflammation देखा, formation of antibodies देखा, different types of WBC, 5 types and their functions. अभी आज के लिए we are done with the lecture, right? और कल क्या हम सीखेंगे, blood clotting system, platelets, vaccination and then heart. So today we are done. नोट्स बनाते रहना है, फिर वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल, राइट, नोट्स बनाइए, टेक्स्ट बुक में पढ़िए जो भी हमने आज सीखा है, और कल शॉर्टली रिवीजन लेके 2 मिनट्स में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज प्लेटलेट्स। ये भी 3rd टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। हमने अब तक जो पढ़ा है आप सब पढ़ के आ रहे हो ना, और कुछ डाउट्स है तो स्नेहल सर तक कन्वे करना है, ओके। सो सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।